भारत की सीओपीडी मृत्यु दर विश्व में सबसे अधिक 1 प्रति लाख जनसंख्या पर 98 है, जिसमें सीओपीडी के 40% मामलों के लिए धूम्रपान जिम्मेवार और सीओपीडी का प्रसार 5.5% से लेकर 7.55 तक, पुरुषों में प्रसार दर 22% और महिलाओं में 19% है। अस्थमा या दमा या फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के बारे में विभिन्न तथा IVY हॉस्पिटल मोहाली के डॉक्टरों की टीम में, जिसमें डॉक्टर सुरेश कुमार गोयल, डॉक्टर सोनल, डॉक्टर रंजीत कुमार गौन, डॉक्टर जगपाल पंडेर ने भी पूर्व जानकारी देते हुए कहा कि तो देखते हैं मीडिया जंक्शन 21 के कैमरे की नज़र से नेगी और श्री विक्रांत शर्मा के साथ। सीओपीडी कहा जाता है। सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। हाल ही में एक सर्वे हुआ था पूरे इंडिया में, जिसमें कि सीओपीडी की अवेयरनेस के लेवल चेक किया गया तो 99% लोगों को, आम पब्लिक को इसके बारे में पता ही नहीं है, उन्होंने ये नाम ही नहीं सुना है। तो जस्ट कुछ फैक्ट बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर टीम ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम आवर हॉस्पिटल। सो टू माय एक्सट्रीम लेफ्ट इज डॉक्टर सुरेश गोयल. Dr. Goyal is senior consultant pulmonologist with us. Next to me is Dr. Sonal. Dr. Sonal is consultant pulmonology in our team. And next to Dr. Sonal is Dr. Jagpal Pandey. He is senior consultant in internal medicine with us. And to my extreme left is Dr. Dinesh Kumar Kohli. He is also consultant internal medicine with us. So कुछ फैक्ट्स और फिगर हैं सीओपीडी के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसके बाद डॉक्टर साहब एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देंगे, then you can have the question and answer session. So just to share with you, COPD is the third largest killer. पूरे विश्व में जो मौतें होती हैं COPD से थर्ड लार्जेस्ट किलर है आफ्टर कार्डियक डिसीजेस एंड कैंसर। देन COPD के जो डेथ्स हैं, अगर COPD के पूरे वर्ल्ड में हम डेथ्स लगाएं तो जो हम एड्स से होने वाली, टीबी से होने वाली, मलेरिया से होने वाली और डायबिटीज से होने वाली डेथ्स को इकट्ठा कर लें तो COPD से इससे ज्यादा डेथ्स होती है। इन चारों बीमारियों से जितनी डेथ्स होती हैं वर्ल्ड वाइड में, उसको इकट्ठा कर लें तो COPD से उससे ज्यादा डेथ्स होती हैं। Also according to an estimate by WHO, इंडिया में अभी जो है करीब 65 million people are suffering from COPD, which is a huge number. तो जितनी ICUs हैं सीजनल चीजन के कारण, क्योंकि हाल ही में AQI लेवल बढ़ गया है, पोल्यूशन के कारण, पराली जलाने के कारण, पटाखों के कारण, दिल्ली का कल आपने न्यूज़ देखी होगी, AQI is touching 900+. काफी जगह में दिल्ली जो AQI है 900+, it is equivalent to having 50 cigarettes in a day. यदि आप स्मोक नहीं भी करते हैं और दिल्ली में रहते हैं तो आप 50 सिगरेट बाय डिफॉल्ट पी रहे हैं। Currently working as a consultant in chest medicine department of IV Hospital Mohali, and today we are here to celebrate World COPD Day on behalf of IV Hospital. Basically, World COPD Day is celebrated on the third Wednesday of November, and the celebration is done to make people aware about the disease. The awareness about the disease is lagging amongst people. So today we would like to present a small presentation on COPD just to generate and educate people, generate awareness and educate people on COPD. So this is a small introduction about IV Hospital. To become the largest and the most respected healthcare provider in the region. These are 5 hospitals which we have. We have one in Mohali, Amritsar, Hoshiarpur, Nawashahar and Khanna. 180 ICU beds and we have 20 modular OTs in these hospitals. This is about our Mohali hospital. So we have in diagnostics we have 1.5 test MRI, we have 64 slice CT scan, mammography, digital X-rays, ultrasound, fully automated labs, in-house blood bank, 2 cath labs, endoscopy suites, colonoscopy suites, dialysis, and all other facilities are also available here. So now we come to the topic of COPD. Other questions, Dr. Kamatini. Awareness Day is breathing is life and we have to act earlier. So basically the risk factors associated with COPD include exposure to any kind of smoke, whether it is cigarette smoking, exposure to any kind of smoke, whether it is cigarette smoking, environmental smoke, chulha smoke or biomass fuel exposure, or certain hereditary diseases can also result in COPD. So now बेसिकली किसी भी तरह का स्मोक का जो एक्सपोजर है, पॉल्यूटेड एरिया में रहना या फिर बीड़ी सिगरेट पीना या फिर बीड़ी सिगरेट पीने वालों के साथ रहना, विच इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग, दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ COPD.
उसके कारण भी ये काले दमे की बीमारी फैलती है। सीओपीडी को एक लेमन लैंग्वेज में काला दमा कहा जाता है। तो अभी कुछ मेरे पास डेटा है रिगार्डिंग द प्रेवलेंस ऑफ सीओपीडी इन इंडिया। बेसिकली एज सर हैज ऑलरेडी मेंशन्ड कि 65 मिलियन के अराउंड केसेस हैं जो कि इंडिया में है सीओपीडी के। जो लेटेस्ट डाटा है दैट इज आल्सो अराउंड 55 to 65 मिलियन केसेस एंड 8.48 लाख डेथ्स जो हैं वो सीओपीडी के कारण हो रही है इंडिया में। वर्ल्ड वाइड इट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ एंड इंडिया में सीओपीडी इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। देन अभी क्या इशू है कि अभी दिवाली के बाद हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दैट हैज बिकम वेरी पुअर। अभी 907 के अराउंड दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है विच इज अ रिस्क फैक्टर फॉर सीओपीडी एज वेल एज जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं उनमें दिक्कत बढ़ने का रिस्क भी इंक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स। हाईएस्ट पॉल्यूटेड जो सिटीज हैं इंडिया में दैट इज दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, फरीदाबाद। चंडीगढ़ का AQI स्लाइटली कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स एंड अदर सिटीज। चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इज नियरली 140 to 200 के बीच। दिस इज वर्ल्ड वाइड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज। तो मतलब सॉरो टू से दैट हमारी कितनी सिटीज हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड में मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में आ रही हैं। एक तरफ हम चंद्रयान पे हमारा लॉन्च हो गया, हम कहाँ तरक्की कर रहे हैं, हर फील्ड में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक प्रॉब्लम है जिसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज रियली सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स कि हमारी इतनी सिटीज वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में आती हैं एक्चुअली। ये सर 2020 का डाटा लिखा है। हुई नहीं है। बट आप खुद पढ़ रहे हैं, कल के आपने देखे न्यूज़पेपर में 900, 950, 990 AQI है दिल्ली का, जो कि 50 सिगरेट पीने के बराबर है। आप स्मोक नहीं भी करते हैं, अगर दिल्ली में सांस ले रहे हैं तो 50 सिगरेट पी रहे हैं। तो बेसिकली इंडिया में क्या इशू है, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो स्मोकर्स में सीओपीडी कॉमन है, इसको स्मोकर्स डिजीज कहा जाता है। लेकिन इंडियन सिनेरियो में क्या है कि इंडिया में नॉन स्मोकर्स जो है उसमें प्रेवलेंस ज़्यादा है। दैट इज बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन एज वेल एज चूल्हा एंड बायोमास फ्यूल एक्सपोजर जो कि बहुत कॉमन है। उसका सिम्टम होता है कि पेशेंट को लंबे समय से खांसी हो रही है, 2-3 साल से पेशेंट को खांसी हो रही है एंड दैट टू इज परसिस्टेंट फॉर 3 months। तो और उसके साथ बलगम भी आ रहा है पेशेंट को। एंड सेकेंड सिम्टम इज कि पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होती है, सांस फूलने की दिक्कत आती है और वो जो दिक्कत है वो बढ़ती रहती है विद टाइम। ऐसा नहीं है कि वो दिक्कत कभी 6 महीने ठीक हो गई उसके बाद दोबारा से हो गई, वो दिक्कत बढ़ती रहती है। सो इट इज अ परसिस्टेंट एंड प्रोग्रेसिव डिजीज। तो डायग्नोसिस कैसे करना है सीओपीडी का? सबसे पहले तो सिम्टम्स पता होना चाहिए। किसी भी तरह का अगर कफ है जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग है, कोई 3-4 महीने की किसी को खांसी हो रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। यू शुड विजिट योर फिजिशियन एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, सो दैट हम डिजीज प्रोग्रेशन प्रिवेंट कर सकें। एंड सेकेंड सिम्टम इज कि पेशेंट को ब्रेथलेसनेस फील होती है, सांस की दिक्कत आती है और सांस की दिक्कत ऐसी होती है कि सांस में सीटियों की आवाज़ आती है। पेशेंट कंप्लेंट करता है कि साई की सीटियों की आवाज़ आ रही है जब सांस फूलती है तो। और सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट प्रोग्रेसिव दिक्कत की कंप्लेंट करता है कि 6 साल पहले उसको सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ने पे दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी पेशेंट को डे टू डे एक्टिविटी में भी दिक्कत हो रही है, मतलब दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो टेस्ट होते हैं कि बीमारी पकड़ में कैसे आए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक्सरे करवाएंगे और आपकी एक फूक वाली जांच करवाएंगे। फूक वाली जांच को स्पायरोमेट्री कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को बोला जाता है कि एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फूक मारनी है जिसमें पता चलेगा फेफड़े कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड स्पायरोमेट्री। सो बेसिकली ये प्रोजेक्शन स्पायरोमेट्री भी है। सीओपीडी दैट इज काला दमा और दमा में बहुत अंतर है। कुछ लोग दमे को और काले दमे को कंफ्यूज कर देते हैं। जो दमा है वो बीमारी बचपन से होती है, पहली चीज। दूसरी बात, दमा इज अ रिवर्सिबल डिसऑर्डर, मतलब इनहेलर लेंगे आप, उसके बाद दमे की बीमारी ठीक हो जाएगी और इनहेलर बंद करने के चांसेस होते हैं। लेकिन सीओपीडी में लाइफ लॉन्ग इनहेलर लेना जरूरी है। इनहेलर जो है हमारे इंडियन सोसाइटी में उसे टैबू माना जाता है। लोग बेसिकली दे थिंक कि इनहेलर लेना तो हमारे लिए मतलब हमें इसकी आदत हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं होता है। इनहेलर में जो मेडिसिन है वो बेसिकली बहुत कम डोज में दी जाती है और वो सीधा लंग्स तक जाती है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई वी शुड एनकरेज द यूज ऑफ इनहेलर्स अमंग सीओपीडी पेशेंट्स। इनहेलर की एक्चुअल टेक्निक
पेशेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल टेक्निक हम कुछ देर में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इनहेलर कैसे यूज। So Dr. Sonal has presented the case very well. So उन्होंने COPD के बारे में बताया। आप लोगों को पता है कल जैसे कि 15 नवंबर को वर्ल्ड COPD डे है। So it is being celebrated for last 20 years. So it is falls on the different dates because जो COPD डे है वो third Wednesday of this November every year. जैसे ऐसे एक वर्ल्ड एस्थमा डे है वो फर्स्ट ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ मई। ऐसे एक डे है वर्ल्ड नो टोबैको डे that is celebrated on 31st of May every year. So these are the days जो गवर्नमेंट डे या वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है टू मेक द अवेयरनेस रिगार्डिंग द डिजीज वेदर इट इज एस्थमा वेदर इट इज COPD. सो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हम जैसे COPD कहते हैं वर्ल्ड वाइड कहते हैं स्मोकिंग इज द मेन रीजन, पर इंडिया में चाइना में थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे जो स्मोकलेस टोबैको जिसको हम गुटखा खैनी जर्दा बोलते हैं वो ज्यादा है। अगर हम 100 केसेस COPD में है उसमें आप कह लो 40% होंगे या 30 होंगे जो स्मोकिंग रिलेटेड होंगे और 78 स्मोकलेस टोबैको। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, फैक्ट्री में चले जाओ, क्योंकि एवरीवेयर नाउ रिटन स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। बट उन्होंने सब्स्टिट्यूट क्या है हमारी पब्लिक ने अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है इसलिए दे यूज द टोबैको इन द फॉर्म ऑफ जर्दा खैनी। तो सभी की पॉकेट में होता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाओ, इवन फीमेल्स सो दे आर चूइंग टोबैको, इवन ड्राइवर्स एंड एवरीवेयर इन द इंडस्ट्री माइनिंग। So this is very common. So in India, the smokers population is 12 crore, but worldwide there is more than 1,000 crore people are 1 billion population is smoking. But in the US or other country, the main reason behind the death is the smoking. But tobacco-less, the smokeless tobacco is also very injurious. So India में जो देखा गया death rate है 1.2 million है due to this tobacco-related diseases. So उसमें देखा गया about 4 lakh people every year die due to smokeless tobacco, which is in the form of jarda khani. So 90% of the oral cancer is due to the smokeless tobacco. So other thing is जो लोगों को पब्लिक को लगता है कि स्मोकिंग की वजह से लंग्स से ही इफेक्टेड होते हैं, बहुत उनको मिथ है। स्मोकिंग जो है उसकी अब बॉडी का कोई भी ऑर्गन उठा लो उसमें सभी का स्मोकिंग पे इफेक्ट है। इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन टू टो। सो ब्रेन में द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक इंक्रीजेस, देन आईज, देन गम्स डिजीज ऑफ डेंटल, then throat cancer, larynx cancer, esophagus cancer, then even you go down, the stomach cancer is more in the smokers, then pancreas cancer, liver cancer, colon cancer, cervix cancer, leukemia, lymphoma, so name any cancer, it is contributing. And stroke, brain stroke, again 30% cases, this smoking, this tobacco is responsible. And in heart diseases, whether this your heart attack or heart failure, again 30 to 35% cases, the main reason is smoking. So in diabetes, 30% more risk in smoker, the development of type 2 diabetes as compared to non-smokers. So these are the very alarming figures which tells us the smoking not only affects the lungs or mouth or our you can say throat, but it affects every organ. So government ने काफी बार ट्राई भी किया, तो जैसे ऐड भी देखी होंगी आपने, अभी पहले अल्कोहल की ऐड बैन की, फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने हमें देखा कि इवन इसकी ऐड भी बैन की है जो स्मोकिंग की है, जर्दा की है, बट पीपल फाइंड आउट द अदर वे। ड्रिंक्स की ऐड में उन्होंने अपना सोडा डाल दिया, जी हेवर्ट्स का सोडा है। ऐसे आपने देखा वर्ल्ड कप में ऐड शो होती है इन द चाइल्डहुड आल्सो। हमने देखा स्कूल में अगर यू कैन से 40 बच्चे हैं कि क्लास है तो उसमें कम से कम 3 से 4 बच्चे ऐसे होंगे जिनको एस्थमा होगा। तो देयर आर 70% चांसेस आर देयर जिनका एस्थमा एट द एज ऑफ 11 12 13 में खत्म भी हो जाता है, पर 30% जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। सो एस्थमा इज वेरी मच कॉमन इन ऑल एज ग्रुप, बट COPD जो है उसकी जो बीमारी है यूजुअली स्टार्ट आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स। So asthma is mainly considered to be allergy. So it can be different type of allergy, whether it's seasonal allergy, some hereditary factor also plays, some occupational factor. कहीं पे जैसे कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, वुलन फैक्ट्री है, माइनिंग एंड डाइंग फैक्ट्री है, so different causes are there. House dust might is also one of the big reason. Even this symptoms, उसमें symptoms बने रहते हैं, दो उसमें भी exacerbations होती हैं due to some viral infection or change of weather, but they can asthma patient can lead normal life. So there are different types of asthma, child onset asthma, the adult onset, exercises, and this stuff, variant asthma, occupational, which can happen. There are many patients who feel breathlessness when they are on the workplace, but when they are off duty or sometimes on a vacation, they feel
they are not having any symptoms. So the asthma can be occupation related. Between the normal airway, this is normal airway, and this is the airway of the asthma patient. So burden of asthma is, you can see there are about 25 to 30 million asthmatics in India. Worldwide is 300 million patients are suffering. And their asthma is, though I will say this COPD smoking incidence in India is on the decreasing trend. But in the study has found that the females are still, the rate are not increasing, but static is there. In the male population, the smoking incidence is on the decreasing side. Breathlessness, cough, wheezing, increased sputum, some patients have chest pains, sleep difficulty, which is particularly very problematic. And sometimes patients have serious disease in the form of severe asthma attacks. So these are patients, but most of the time complaints of cough and wheezing and tightness of the chest. So what question do the symptoms get worse? These are the usually questions we ask from the patient or from the parents of the child. So sometimes the child have asthma in the childhood, that is allergen-induced asthma, is have family history of this asthma. Then it can be environmental exposure to allergens, early exposure, smoking, again pollution and infection and infestation, foods and nutrition, even food preservative. We usually avoid the patient, they avoid the preservative like this उसमें डालते हैं पिज्जा और बर्गर में, that is उससे quite is mental stress during exam. The young children can have asthma attacks. Sometimes it can be drug induced, some like aspirin or Nalsate, or it can be exercise, which usually tell the patient that they can use the inhaler before going for the swimming or exercise. The birth weight of this birth weight baby can have less weight. So there are many factors which can affect the smoking due to passive smoking. Sometimes so हम यूज इनहेलर ही करते हैं, पर इनहेलर पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी काफी बढ़ गई है पहले से, क्योंकि प्रीवियसली पेशेंट आर वेरी स्केयर्ड. उनको होता है मैं कोई भी फॉर्म में दे दो, टैबलेट दे दो, सिरप दे दो, चाहे इंजेक्शन लगा दो, but they are not scared of that. But the inhaler, they usually have some stigma that they don't want to use the inhaler. Particularly parents don't want to use the inhaler in children. उनको लगता है इतनी यंग एज में हमने इनहेलर शुरू कर दिया तो आगे बच्चे की लाइफ है तो कैसे निकलेगी. बट उनको जब हम समझाते हैं कि मेडिसिन का साइड इफेक्ट काम है, इमीडिएट एक्शन है, तो वो अभी समझने लगे हैं. सो देयर आर मेनी एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स आर आल्सो देयर. सो इसमें मैंने दिखाया जैसे व्हाई इनहेलर्स. सो मिनिमम डोज, दिस इज वन एडवांटेज, नो सिस्टेमिक इफेक्ट, अर्ली रिलीफ. नो सिस्टेमिक इफेक्ट में हम जब कोई भी दवाई खाते हैं पहले पेट में जाती है, फिर वो डिसॉल्व होके लिवर में मेटाबोलाइज होके सारी बॉडी में ट्रैवल करती है. जैसे आईज की दवाई हम आई ड्रॉप की डालते हैं स्किन में, स्किन ऑइंटमेंट यूज करते हैं, इसी तरह इनहेलर जहां हमें जरूरत है वहीं पे मेडिसिन एक्ट करती है, तो उसकी मात्रा भी बहुत कम होती है. सो नो सिस्टेमिक इफेक्ट, अर्ली पेन है, आर्थराइटिस है, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू यूज इनहेलर. बट इंडिया में ईच एंड एवरी ड्रग इज अवेलेबल, चाहे वो इंडिया में बनी है चाहे किसी की कंट्री में भी बनी है, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इनहेलर एंड डिवाइसेस आर अवेलेबल. सो टू अवॉइडिंग एस्थमा के लिए हमें अवॉइड ट्रिगर्स, अर्ली ट्रीटमेंट. ट्रिगर्स में पेशेंट को यूजुअली कहते हैं लगाते हैं ना, उससे सारे जो एलर्जेंस हैं, डस्ट माइट हैं, वो एकदम से एयर में स्प्रेड हो जाते हैं. दैट चाइल्ड और any person in the family can inhale, that can lead to increased symptoms. So vacuum and wet mopping is considered to be safe. Even so, who all should know? Well-wisher, friends and relatives. These are the special situation things to which one should avoid: preservative foods, exercise and games. If one person want to play, then he can play. So he should carry this inhaler along with marriage and pregnancy. One thing I like to again emphasize. So uncontrolled asthma during pregnancy is a serious risk factor for fetal, and anoxia can lead to, so decreased oxygen can lead to premature labor and even fetal death. So one should, and this dry powder inhaler, and third is nebulizer. Nebulizer we mainly use in the younger children. When this nebulizer, one should take proper rest and proper treatment. Green zone, he can be even decrease the dose or stop the inhaler also. So these are the few worldwide famous personality. They are chronic asthmatic, Amitabh Bachchan, and this Ian Botham, and was asthmatic. Parents में अस्थमा है, जैसे हम कहते हैं ना, पेरेंट्स में अगर किसी को डायबिटीज है, वन पेरेंट्स में या दो पेरेंट्स में, तो उसमें उतने 70% चांसेस रहते हैं कि आगे जनरेशन में होती है. जैसे यंग चिल्ड्रन में काफी बड़ा फैक्टर रहता है, फैमिली में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में कोई अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उसमें हो जाता है. तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे डस्ट माइट है, एयर पोल्यूशन है, पोलन्स हैं. सो चाहिए एक वैक्सीन का नाम है PCV13 जो कि पहले लगता है.
उसके 8 हफ्ते बाद या आप 1 साल के बाद दूसरा वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिसको PPSV 23 कहते हैं। इसकी प्रिवेंशन के लिए है। हाँ जी, निमोनिया की प्रिवेंशन के लिए है बेसिकली वो। एंड एवरी ईयर हर एल्डरली पेशेंट जो 65 प्लस है उसको फ्लू शॉट्स लेने चाहिए हर साल। टाइप से प्रिवेंट करता है। इसकी राइट है क्या थोड़ा नहीं है। हाँ जी। स्टेरॉइड की नो स्टेरॉइड। कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी की लंबी कोई गठिए की दवाई चल रही है, ऐसे मरीज, कैंसर के पेशेंट्स जो हैं, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं, उनको 65 से कम की उम्र में ही ये वैक्सीन ले लेना चाहिए। बिल्कुल। एंड सेम इज द कॉस्ट फॉर फ्लू शॉट्स एंड जो PPSV 23 है। इसके अलावा और भी कोई वैक्सीनेशन है अवेलेबल, मतलब जैसे आप अस्थमा का कह रहे हैं, कोई और वैक्सीनेशन भी है सर इसके अलावा? जो छोटे बच्चे हैं, एक्चुअली ये तो एडल्ट्स की वैक्सीनेशन हो गई। छोटे बच्चों में हिप वैक्सीनेशन आती है, HIV कहते हैं उसको। तो वो छोटे बच्चों में हमारे जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इंडिया का, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड दूसरा वैक्सीन अभी नया मार्केट में आने वाला है, उसको RSV वैक्सीन कहा जाता है। दैट विल बी अवेलेबल सून, विद इन 6 मंथ्स और कमिंग ईयर्स में अवेलेबल हो जाएगा। एक रॉक्सोल से 30 मिनट्स का प्राणायाम तो जरूरी है, 5 days a week। तो उससे लंग्स हेल्दी रहते हैं। इट इज नॉट द ट्रीटमेंट, बट ये लंग्स को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है कि किसी की दिक्कत बढ़ी हुई है और वो प्राणायाम करे। जो पेशेंट ऑलरेडी ऑन इनहेलर्स है, डिजीज उसका स्टेबल है, उसको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। दैट इज द रिकमेंडेशन। और एक स्टीम, तो उसका भी कुछ मतलब कोई आप तो साइड गर्म पानी की जो भाप होती है, बेसिकली उसके 2 इफेक्ट्स आते हैं लंग में। एक तो वो गर्म पानी की भाप जैसे अंदर जाएगी, उससे जो उसका वार्म रिलीज होएगा, अंदर जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं वो कई बार उससे ही स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। सेकंड, जो अंदर बलगम जमा हुआ है वो पिघल जाता है और वो बलगम निकालने में मदद करती है। करना चाहिए एक्चुअली। हर पेशेंट जो मेरे पास, खासकर जो हिमाचल के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उनमें चूल्हा जो है वो बहुत कॉमनली यूज करती है फीमेल जो है, वहाँ पे बहुत प्रेवलेंस है। तो उनको हम बोलते हैं, मना करते हैं कि चूल्हा बिल्कुल यूज नहीं करना है। इवन अगर वो छोड़ भी देते हैं ना, उसके 2-2.5 साल बाद तक भी फेफड़े में रिस्क रहता है। नहीं तो लेकिन जब गैस पे भी रसोई बनाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ स्मोक तो नहीं, गैस की स्मोक से PM 2.5 जनरेट नहीं होता है। PM 2.5 इज पार्टिकुलेट मैटर 2.5। लेकिन जो हम चूल्हा में यूज कर रहे हैं, जो बायोमास, सपोज जो काउडंग वगैरह, काउडंग केक्स यूज करते हैं, उससे जो पॉल्यूटेंट जनरेट होता है दैट इज PM 2.5, जो कि लंग्स के अंदर तक जाके अफेक्ट करेगा। तो हम किचन में कुकिंग कर रहे हैं, उससे वो जनरेट नहीं होता है जो गैस स्टोव से। that we can say that is the snooze cause of asthma snooze. एस्थमेटिक ट्रिगर कर सकते हैं धुएं से, पर जो हमारा COPD वाले पेशेंट है वो इन चीजों से बच जाते हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टर ने पहले भी बताया, हमारे इंडिया में तो 60% 70% केसेस हैं जो COPD के, वो दूसरी स्मोकिंग से नहीं है, दूसरे कारणों से है। जैसे उसमें चूल्हा इज वन ऑफ द रीजन। जैसे सर्दियों में लोग लकड़ी अपने रूम में या कहीं और बाल लेते हैं, तो उससे भी जो एज ए हीटिंग दे आल्सो यूज द वुड एज ए हीटर ड्यूरिंग द विंटर। तो उसकी भी स्मोक है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी डेंजरस। अदरवाइज भी जो पोल्यूशन है और फैक्ट्रीज में है, तो हमारे वर्कर्स हैं, यहाँ पे भी आप देखो कहीं इवन कार ठीक कराने चले जाओ, कहीं भी यहाँ पे मेक भी करते हैं, दे यूजुअली डोंट वियर एनी मास्क। सो फैक्ट्रीज में भी मिनट्स लाइफ कम करती है। और जो स्मोकर्स हैं जिन्हें COPD डिजीज होगी, उनकी टोटल लाइफ 8 to 10 ईयर कम होती है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। सो बंदा किसी पूछो, कहते नहीं मैंने तो लाखों सिगरेट पी ली, मेरी लाइफ तो फिर अब तक कब मर जाना चाहिए था मेरे को। तो वैसा नहीं, आई मीन से स्टडी है जिसपे आप, जैसे मैंने बताया 8 से 10 साल लोगों की लाइफ कम हो जाती है जिसको COPD हो गई है, उसी लिए जो सिगरेट पीता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है। एटलीस्ट यहाँ उसमें 15 से 18 बंदे हैं जिसको COPD होती है, बट अदर इसमें बाकी के फैक्टर्स भी हैं। ऐसा नहीं 100 बंदे भी 100 के 100 को हो जाती है। मैंने कई बार में तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बीमारी होती है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, पेट की बीमारी होती है। जी तो उस बीमारी में एक स्टडी में पाया गया था कि अगर आप स्मोक करते हो तो स्मोकिंग उस बीमारी में बेनिफिशियल है। यस और इवन एक फेफड़े की बीमारी होती है, फेफड़े की पूरी बॉडी की बीमारी होती है, स्टार्टर्स होती है, उसको सार्कोइडोसिस कहते हैं। तो उसमें भी उस बीमारी का जो इंसिडेंस है वो स्मोकर्स में कम होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्मोकिंग जरूरी है और शुरू करते नहीं हैं। बट सम टाइम रीजन भी है।
नहीं। कोई भी नमस्ते जी, मेरा नाम डॉक्टर सोनल है। मैं आईवी हॉस्पिटल मोहाली में कंसल्टेंट हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन। और हम लोग आज यहाँ पे आईवी हॉस्पिटल मोहाली से, जो कि पंजाब की एक बहुत बड़ी चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, हाईएस्ट बेडेड चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है पंजाब की, हम सारे डॉक्टर्स वहाँ से इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुरेश हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं पल्मोनरी मेडिसिन में। मेरे साथ डॉक्टर जगपाल हैं जो कि मेडिसिन के कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर रंजीत हैं जो कि मेडिसिन डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट हैं। हम आज इकट्ठा हुए हैं वर्ल्ड सीओपीडी डे के लिए, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। वर्ल्ड सीओपीडी डे जो है वो हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। सीओपीडी स्टैंड्स फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसे हिंदी पंजाबी में काला दमा कहा जाता है। ये स्मोक के साथ एसोसिएटेड बीमारी है। स्मोक यानी धुएं के साथ एसोसिएटेड, पॉल्यूशन के साथ एसोसिएटेड बीमारी है, जो कि बीड़ी सिगरेट पीने से, धुएं वाले एरिया में रहने से, पॉल्यूटेड एरिया में रहने से होती है। इस बीमारी का इलाज इन्हेलर्स हैं एंड बीड़ी सिगरेट को स्मोक करना बंद करना है। एंड इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें बीड़ी सिगरेट की स्मोकिंग बंद करनी है, पॉल्यूटेड एरिया से दूर रहना है। कोई भी अगर हमारा ट्रिगर है, सपोज हमें किसी चीज़ से एलर्जी है, तो उससे बचाव रखना है। और बीमारी को बिगड़ने से बचाने के लिए हमें स्मोकिंग तो बंद करनी है, साथ में वैक्सीनेशन ज़रूर लेनी है, जो कि निमोनिया से बचा के रखती है, क्योंकि सीओपीडी में निमोनिया के कारण डेथ्स जो होती हैं दैट इज़ वेरी कॉमन। सो टुडे वी आर हेयर टू जनरेट अवेयरनेस फॉर सीओपीडी। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल मेरा है, हाँ जी। क्या माँ बाप को यदि ये बीमारियाँ बच्चों को भी हो सकती है? दूसरा, लोग आज भी अंगीठी पर खाना बनाते हैं, क्या उनको भी ये बीमारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर पेरेंट्स को बीमारी है तो बच्चों में सीओपीडी की बीमारी के चांसेस नहीं होते हैं, कम होते हैं। अगर पेरेंट्स को एलर्जी के कारण दमा है तो वो बच्चों में चांसेस होते हैं जाने के। और जो चूल्हा चलाते हैं उनमें बहुत हाई रिस्क होता है, और ये तो बहुत कॉमन है इंडिया में कि चूल्हा जलाना, और चूल्हा जलाने वाले केसेस में सीओपीडी एक कॉमन बीमारी है उन पेशेंट्स में। तो चूल्हा तो बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। वी डू नॉट सपोर्ट इट। वैक्सीनेशन का डॉक्टर साहब नाम बता दीजिए और कॉस्ट भी बता दीजिए जो वैक्सीनेशन न्यूमोकोकल वैक्सीन आती है एंड फ्लू शॉट्स आते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन 2 तरह के होते हैं, PCV 13 एंड 23। पहले 13 वाला लगवाना है, उससे 8 हफ्ते या 1 साल के बाद 23 वाला लगाना है। एंड फ्लू शॉट्स हर साल लगवाने हैं। ये वैक्सीन की जो कॉस्ट है वो 3500 से लेके 4000 के बीच के दौरान पड़ती है। गवर्नमेंट की सब्सिडी है वैक्सीनेशन पे, इस पे जैसे नहीं, कोविड में इसमें उन्होंने सब्सिडाइज किया। कोविड वैक्सीन तो गवर्नमेंट की तरफ से थे, लेकिन इसमें कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं है। मैडम, जिन बुजुर्गों को 65 साल से उम्र जिनकी ऊपर होती है, निमोनिया होता है, हाँ जी। क्या उनको ये बीमारी घेर सकती है? यदि घेरती है तो क्या इलाज संभव है? एक बार निमोनिया होने से सीओपीडी का रिस्क नहीं होता है। टीबी के कारण सीओपीडी का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपको बचपन से बार बार निमोनिया हो रहा है तो ये बीमारी बिगड़ने का और दमे की बीमारी होने का